So yes, hello everyone, this is Abhay and we are going to start with the lecture 3 of number 3. So in this lecture we are going to study the most important part of number 3, which is the sieve of Eratosthenes. He is a mathematician who derived this algorithm for finding the primes. Means sieve, like ये काफ़ी एफिशिएंट एल्गोरिदम है जब हम बहुत रेंज में हमें चेक करना हो कितने प्राइम्स हैं, या फिर हमें रेंज के अंदर बहुत चेक करना हो कि ये प्राइम है या नहीं है, या फिर हमें रेंज के प्राइम्स प्रिंट करने हो, तो इन दैट वी कैन यूज दिस एल्गोरिदम. So we will study about this, its implementation and its time complexities, right? So before that, let's know about the Newton School. So Newton School is a higher tech company which teaches you full stack development for absolute basic to advanced level. They didn't take any fee until you get placed in the top companies. They provide you the live classes, some best projects, and the personal mentoring from the top-notch mentors placed in the top companies, right? So they have also cool feature called as Launchpad, where you can sit and write the code, and you will be getting the certificate of completion after, yeah. And all the courses you can check out here by the top instructors placed in the top companies, right? If you still have any question, you can visit their site and read out the FAQs right here. All the links will be in the description. You can definitely check it out, right? So let's come back to our topic, which is sieve of erythrosis, right? I will not pronounce it. We can call it like sieve. So, so yeah, like like so, like we are given a number. Let's suppose we are taking every time 48. So let's go with 48. So अब हमें इसमें कहा गया है जैसे कि हमें 48 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है. तो हमने जो अब तक पढ़ा है वो ये है कि हम फोर लूप चलाएंगे 2 से लेकर n तक. फिर हम चेक करेंगे अगर ये 4 आए, इफ़ i is prime, then we will print it, right? Then it will comes under the complexity of n square root of n, right? अब इसके ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ठीक है. अब हमने 48 के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, विच इज़ 2. 48 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है. तो वो क्या आएंगे, 48 में ज़्यादा बड़ा ले लिया, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, एक मिनट. इट कैन बी समथिंग लाइक let's suppose 10, right? 10 तक के क्या होंगे, 2, 3, 5 and 7. These are the prime numbers from 1 to 10. 1 is not considered as a prime, right? So अब इसमें क्या था कि हम 2 से लेकर n तक का सारे लूप चला रहे हैं, उसके अंदर i प्राइम है तो प्रिंट कर रहे हैं, राइट. i प्राइम करने का कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ n, और इसकी कितनी है n. तो n स्क्वायर रूट n की कॉम्प्लेक्सिटी, तो मतलब ये थोड़ा काम खराब होगा. जब हमें n बहुत बड़ा गिवन होगा तो वी कांट लाइक डू इट. n square root n means something of n order of 3 by 2, right, which is going above linear time, so we can't use it in that question, right? So in that case what we will do, so in that case we have a good option of using the sieve. We can remember that logic. So what it do is, like we are given a number 10, right? We are given number 10, so I have to, let me just write down the number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, right? Now what this algorithm do, it takes a number, like हमें पता है कि जब कोई नंबर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो उसका नंबर होगा जो उसे डिवाइड कर रहा होगा वो प्राइम होगा, ठीक है. जैसे अगर मैं 13 की बात करूँ, 13 को जो पहला नंबर उसको डिवाइड करेगा, सबसे पहला नंबर वो प्राइम होगा. अगर मैं 48 की बात करूँ, जो सबसे पहला नंबर डिवाइड करेगा वो 2 है, वो प्राइम है. अगर 13 की बात करूँ, 13 को पहला नंबर जो डिवाइड करेगा वो 13 है, वो प्राइम है, राइट. आई एम नॉट कंसिडरिंग 1, राइट. सो अब 10 को जो पहला नंबर डिवाइड करेगा वो 2 है, 2 प्राइम है. तो 2 से डिविजिबल उसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे हम उसको फॉल्स कर देंगे. मतलब इनिशियली वी आर, हमारे पास हम मानेंगे कि सारे नंबर्स 2 से लेकर 10 तक प्राइम है. फिर हम पहला नंबर चेक करेंगे जो प्राइम है, ठीक है. अभी हमारे पास 2 है. अब 2 10 को डिवाइड करता है, तो हम 2 से लेकर 10 तक के सारे 2 के डिवाइस हम फॉल्स कर देंगे. मतलब हम इसको फॉल्स कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे. मतलब ये प्राइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 आ गया. 2 का कोई भी डिवाइजर आगे आएगा तो मतलब वो उसका फैक्टर 2 प्रेजेंट है, तो वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है. फिर वो 3 आएगा. अब आगे जो नंबर फर्स्ट टाइम आकर करेंगे वो डेफिनेटली प्राइम होंगे, वो कंपोजिट नहीं होंगे, ठीक है. अब जैसे 3 आएगा,
3 के आगे कोई भी मल्टीपल विच इज़ 9, तो यहाँ पर 3 कैंसिल होगा. देन वी कम्स टू 5, देन वी कम्स टू 7, राइट. आगे कोई मल्टीपल है नहीं 10 तक. अब जो नंबर्स बचे हैं दीज आर प्राइम्स, राइट. अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट. अब पॉइंट यहाँ पर आता है. अब हमें पता है कि जैसे अभी पिछली दोनों वीडियो में हमने ये चीज़ दोनों में यूज़ किया कि एक नंबर का कोई भी फैक्टर होगा x और y के पेयर्स में करेगा, उसमें छोटा फैक्टर होगा वो हमेशा n के स्क्वायर रूट या फिर n से छोटा होगा, ठीक है. इसके अंदर अकर करेगा. अब ये हम इसी चीज़ को मानते हुए हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले हम उसके पहले फैक्टर्स में ट्रेवर्स करेंगे कि 4i फ्रॉम 2 to square root of n, राइट. इफ़ लेट्स सपोज कि मैंने इन सभी की जो ये ट्रू है या फॉल्स है मैंने एक फैक्टर माना है प्राइम, उसमें मैं स्ट्रो कर रहा हूँ कि वो है कि नहीं. इफ़ प्राइम ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, राइट. आई एम जस्ट राइटिंग अ स्यूडो कोड, राइट. अगर वो ट्रू है देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक ऑल द डिवाइसेस ऑफ आई till n equal to false, right. Then I will run for j from 2 into I till n and do p of j is equal to false, right. This thing I need to do, and after this what I will do, ये सब करने के बाद then I will just run a loop from 4 I from 2 to n. If p of I is equal to true, then print I. Oh, just a minute, let me just remove my video now. Now it's somehow clear. If 2 raised, now at last what I will do, run a loop from 2 to n. If that current is true, then it will run. There is some more optimization in this code, which is like, let me just implement this logic first, then we will move on to next, right. So yeah, I have just implemented this logic before. Yeah, so here is the logic, right. I have written the code from 2 to I, from I n, and then if that prime, like I have created, पहले मैंने प्राइम की एक वेक्टर बनाई है, वो उसको मैं ट्रू माना, मतलब सारे एलिमेंट्स n तक के ट्रू है. फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर करंट एलिमेंट, मतलब जो पहले सबसे पहले एलिमेंट आएगा वो ट्रू है, तो क्या होगा कि हम 2 इंटू आई, मतलब जो पहला नेक्स्ट नंबर होगा उससे लेकर n तक के हर डिवाइजर, क्योंकि हर बार हम आई प्लस करेंगे तो मतलब हर आई आगे वाले सभी 2 है, तो फिर 4 6 8 सभी 3 है, तो 3 6 9 ऐसे सारे नंबर्स को हम फॉल्स कर देंगे, राइट. देन उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप फ्रॉम 2 to n. देन इफ अगर करंट नंबर ट्रू होगा मतलब वो प्राइम ही है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, राइट. या अब इसकी एक ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे हम यहाँ पर अलग लूप चला के हम प्रिंट कर रहे हैं, सो वी कैन ऑप्टिमाइज इट, राइट. हियर इज एन ऑब्जर्वेशन, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट मोर. या सो लेट्स सपोज कि हमारे पास नंबर ही है, लेट्स सपोज नंबर है 18. 18 के बीच में पहले नंबर आते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड 17, राइट. नाउ अब हमें पता है कि जैसे अब मानो कि पहले नंबर्स क्या, हमने 2 के ये नंबर निकाले हैं, ठीक है. चलो ऊपर वाले एग्जांपल में करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा ये वाले, ठीक है. मैं जस्ट थोड़ा क्लियर करता हूँ. जस्ट या तो सबसे पहले मतलब हमने 2 को देखा, तो हमने क्या किया था कि 2 को हमने 2 के सारे फैक्टर रिमूव किए थे, राइट. 2 4 6 8, बट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 2 इंटू आई से, राइट. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 2 इंटू आई से. बट यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन ये है कि हम यहाँ से 2 इंटू आई की जगह हम शुरू करेंगे कहाँ से, आई इंटू आई से, ठीक है. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आई इंटू आई का मतलब ये है कि जैसे 5 है तो 5 यहाँ पर 7 ले लो, जैसे 7 इंटू 2 7 इंटू 3 7 इंटू 4 7 इंटू 6 तक के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि 2 से लेकर 6 तक हम पहले कर चुके हुए हैं रिवर्स, राइट. सो 2 से लेकर 6 तक के सारे मल्टीपल्स
वो हम पहले फॉल्स कर चुके होंगे n तक की रेंज के अंदर. तो now we have to just start from 7 into 7 which is I into I till n. बट हेयर इज एन कॉन्ट्रडिक्शन. अगर हम जे आई इंटू आई से शुरू करेंगे तो वो कभी वर्क करेगा नहीं इस केस में, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है आई कब तक वर्क करेगा, जब तक वो स्क्वायर रूट एन के बीच में, मीन्स आई इंटू आई लेस देन एन. और अगर हम जे आई इंटू आई से शुरू करेंगे सो मीन्स इट विल जस्ट नॉट रन द लॉजिक, राइट. सो हेयर इज ऑब्जर्वेशन. हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आई इंटू आई की जगह यहाँ पर हम आई करेंगे एंड हेयर वी विल वर्क फ्रॉम आई. नाउ इफ यहाँ पर हम आई 2 से लेकर एन तक रिवर्स कर रहे हैं और अगर करंट आई प्राइम है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लूप चलाने की जरूरत नहीं है. तो हम यहीं पर ही प्रिंट आई कर देंगे, राइट. सो दिस इज एन मोर ऑप्टिमाइजेशन कोड. अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो हेयर इज एन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फुल लॉजिक इज अबाउट एन log n, which is let me just go down. Complexity is of order of n log of n, right. I am not going to just drive this because the derivation of this logic is quite high, but you can just compare with the n square root of n logic. Like you can check from n then log n. Log n is quite बहुत छोटी value है, so it will be something like n of power something about point one point something, or yeah, 1 point something about, right. Then and here we comes to about the n power 3 by 2, which is about 1.5 something about, it is 1.0 something about, right, which is less than, which is very less than n raised to power 3 by 2, right. So we will follow this sieve when we have to just check, right. Here is an application, right. We are given an array of 2 3 4 of 10 raised to power 6 elements. We have to check which of these elements are prime. 2 4 6 8 1000 1 0 0 0 7, right. Then what we will do, we will just pre-compute the sieve before the starting of test cases, and then take the input of array and just check p of a of I is equal to true, then count plus plus, right. Then it will just increment the prime numbers in an array of big size. If you just you run for the n square root n algorithm, then it will definitely give you time limit exceed, because you are checking every number in square root of n and you are traversing the n range of array of size 10 raised to power 6, right. So here is again the implementation of sieve algorithm, right. So this was the sieve of arithmesis, right. In the next video we are going to just solve one or two questions on sieve, right, because a basic question on sieve, because it is like a quite a very important topic in number theory, right. So till now you can just practice this topic, and yeah, and yes, you can, and you should definitely check out the Newton School website. The links will be in description. Till then, thank you and happy coding.